So we now are discussion with the multifunctional role of parliament. We'll be seeing the multiple dimensions which will include, let's say, your legislative, your executive dimension, your judicial dimensions, your financial dimensions, some other powers, so on and so forth. So when we talk about parliament, see, many of the things would be concurrent with the state legislature also, but some of the things will be not. But now you have done enough about the state legislature that you yourself will be able to find out that what are the specificities in the case of state legislature. But we are focusing on the parliament. We start with the legislative powers and functions, which we already know, the basic and the most important function, which is of lawmaking for the governance of the country. Now, because we are seeing it from the perspective of the parliament, so we are talking about that what are the powers lying with the union legislature for making laws. Now, on the subjects of union list and the residuary subjects, see here, the union list subjects and the residuary subjects, the exclusive power of law making is with the union legislature. कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्करेंट पावर होता है यूनियन और स्टेट के पास, बट द यूनियन हैज़ ओवर राइडिंग पावर्स इन केस ऑफ देयर इज एनी इशू और डेडलॉक बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. एंड ऑन द मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, usually the state legislature will have the power to make laws, but under some 5 extraordinary situations the union also gets to make laws. What are those 5 extraordinary situations? We'll do a topic after we finish the major pointers. So we'll have a topic on the legislative relations between center and state, जहाँ हम समझेंगे कि वो क्या 5 ऐसे सिचुएशन है wherein even on the state list matters the union can make laws. So this should be clear about the law making power of the union legislature, which is parliament. Moving on, you know about the ordinances कि parliament को ordinances को after within 6 weeks of their reassembly approve करना होगा, नहीं तो वो inoperative हो जाएगा. So even though the president will promulgate the ordinance, लेकिन 6 हफ्ते ऑफ री असेंबली के पार्लियामेंट यानी दोनों हाउसेस को उसको अप्रूव करना होगा. वी हैव ऑलरेडी डन अबाउट ऑर्डिनेंसेस, राइट? ओके, मूविंग ऑन. देन you also talk about one important thing which is about making laws in the skeleton form. कि पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ को एक ढांचा दे देती है, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है. देन व्हाट डज इट डू? ऑथोराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस. एग्जीक्यूटिव को ये पावर देती है कि फिर आप और डिटेल, हमने ढांचा दे दिया आपको बना के, क्योंकि इनको बहुत सारे लॉज बनाने हैं ना, तो दे कैन नॉट जस्ट डू द ओनली वर्क. तो एग्जीक्यूटिव जो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, जो स्पेशली ब्यूरोक्रेसी में क्यों कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ये पावर होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस. एक तो उनका काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, बट द डिटेल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय एग्जीक्यूटिव. अच्छा, इसमें भी क्या होता है, इसको अलग अलग चीज़ें मतलब नाम से बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डेलीगेटेड मतलब मेरा पावर ऑफ लेजिस्लेशन मैंने किसी को डेलीगेट कर दिया, दे दिया, ठीक है. और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन. एंड देन ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने बना दिया और वो सीधे लागू हो जाएगा, उसको पार्लियामेंट के पास दिया जाएगा और एग्जामिनेशन के लिए रखा जाएगा, ठीक है. फिर वहाँ से अप्रूवल एट्सेट्रा होके वो फाइनल पिक्चर में आएगा. तो दिस इज अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर. मूविंग ऑन विद द एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट. फर्स्टली, पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव पावर देख रहे हैं. So what are the mechanisms or what are the devices through which the parliament controls over executive? ये सीधे सीधे prelims में correct incorrect के form में आ सकता है question. So you have question hour, you have 0 hour जहाँ questions पूछे जाते हैं. You have half an hour discussion, short duration discussion, calling attention motion, adjournment motion, no confidence motion, censure motion and other discussions. All of these devices हम devices of parliamentary proceedings में कर चुके हैं, ठीक है. Every detail I have given you, so you should see if you have not. That is why this topic is done towards the end, because we have already done all the terminologies related. अब जैसे ऑर्डिनेंस है तो आपको पता है कि ऑर्डिनेंस क्या है, लिस्ट के बारे में हम काफ़ी पहले बात कर चुके हैं. सो यू आर अवेयर अबाउट द बेसिक थिंग्स, राइट? सो दिस इज जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ इट. देन सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ बाय द कमिटीज़, जैसे कि डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एट्सेट्रा. तो कमिटीज़ के थ्रू भी उन पर चेक किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है. यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस
proper point of, you would say the core of the parliamentary system, which is the collective responsibility of ministers to parliament in general, Lok Sabha in particular. So we know that the council of ministers is responsible to Lok Sabha, ये हमें पता है. Also there is individual responsibility of minister, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, which is indirectly given in the constitution for efficient administration of ministry under his charge. लोक सभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट, है ना. तो लेजिस्लेचर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर सकती है. कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे रिमूवल हो जाता है गवर्नमेंट का, सेंशर, एडजर्नमेंट, कट मोशन एट्सेट्रा, हमने पढ़ा हुआ है ये सब. और बाई नॉट पासिंग अ मोशन ऑफ थैंक्स, आपको याद है प्रेसिडेंट एड्रेस में हमने ये बात करी थी कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट का होता है वो नहीं पास होगा तो भी रिमूवल हो जाएगा. और रिजेक्टिंग अ मनी बिल, ये हमने करा हुआ है. और बाई डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू, वाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और आप सरकार को सपोर्ट नहीं अगर कर रहे हो तो सरकार गिर जाएगी. ठीक है. तो हाउ द लेजिस्लेचर कीप्स अ चेक ओवर एग्जीक्यूटिव, ये सब आपके पॉइंट सेपरेशन ऑफ पावर के टॉपिक में भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. मूविंग ऑन with the financial powers, we have done this very recently about budget etc. So no tax can be levied or collected and no expenditure can be incurred by executive except under authority and with the parliamentary approval. This is a point that an article में दिया हुआ था और हमने करा है कि कोई भी टैक्स आप इम्पोज नहीं कर सकते हो या कलेक्ट नहीं कर सकते हो. इवन यू कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर जो एग्जीक्यूटिव करेगी खुद से, एक्सेप्ट अप्रूवल अगर आपको नहीं मिल रहा है पार्लियामेंट का, या फिर पार्लियामेंट ने उसके लिए लॉ बनाया हुआ है. ठीक है. बजट इज़ प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल, तो फाइनेंशियल मैटर्स में पार्लियामेंट का भी रोल है. बजट का जो इनैक्टमेंट है उसके लिए भी लेजिस्लेशन हमें चाहिए. रिसीट्स हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, हमें लॉस चाहिए. वी नो कि पार्लियामेंट ऑल्सो स्क्रूटनाइजेज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ऐसा तो है नहीं कि सरकार जितना चाहे उतना खर्च कर सकती है. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना हो रहा है, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज़. सो अभी हम करेंगे फाइनेंशियल कमिटीज़, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी. तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो कि ये चेक करती हैं कि हाउ द गवर्नमेंट हैज़ बीन परफॉर्मिंग ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट. पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे कि बजटरी कंट्रोल. क्यों? क्योंकि अगर आपको ग्रांट का अप्रोप्रिएशन चाहिए बजट से पहले, तो अप्रोप्रिएशन का सारा प्रोसेस है, आपको पता ही है. उसके अलावा पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी होता है, यानी बजट के बाद क्या होता है, 3 फाइनेंशियल कमेटी जो है वो चेक करेगी कि अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट होना है कि नहीं, जिसके लिए हम अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह पास करवाते हैं. बजट प्रिंसिपल ऑफ एनुइटी पे चलता है, मतलब एनुइटी मतलब एनुअल उस सेंस में. सो 1 ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए यू नो दैट द मनी इज़ ग्रांटेड टू गवर्नमेंट बाय द पार्लियामेंट, है ना. ये हमने पढ़ा हुआ है. 1 साल के लिए जो भी एस्टिमेट्स होते हैं उस हिसाब से पैसा ग्रांट किया जाता है. अब क्या सीन है, इफ़ द मनी इज़ नॉट स्पेंट बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. जो फाइनेंशियल ईयर है आपको पता है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है. एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक अगर वो पैसा जो उनको ग्रांट किया गया था अगर वो नहीं ख़त्म होता है तो बैलेंस क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाएगा. मतलब जितना भी रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट विल गेट एक्सपायर्ड एंड विल रिटर्न टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, विच इज़ कॉल्ड एज रूल ऑफ लैप्स. तो एक्सपायर हो जाना मतलब लैप्स हो जाना. व्हाट डज इट मीन इज़ कि ऐसा नहीं है कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार को वो पुराना पैसा कंटिन्यू करने देंगे. वो फिर पूरा नेक्स्ट एलोकेशन फ्रेश एलोकेशन होगा. पुराना जो भी एलोकेशन है, इनकेस पैसा बचता है वो सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस चला जाएगा. फिर जो भी होना है वहाँ से होगा. Right? So therefore, what is the key idea behind this or key principle to work like this? That no reserve funds can be built. वो लोग कोई अपना रिजर्व फंड नहीं बना के रख पाएंगे, ठीक है, विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट. क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो आपको अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए एंड देन पार्लियामेंट का रोल रहेगा ही रहेगा. सो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार अपना रिजर्व फंड्स ना बनाते चले जाए. However, this leads to heavy rush of expenditure towards the close of financial year. Of course, क्योंकि सारा पैसा का एडजस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो उस टाइम पे बहुत क्योस हो जाता है सब कुछ मैनेज करने में, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना बचा, कितना वापस फंड में डालना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो दिस इज़ कॉल्ड एज मार्च
रश, क्योंकि मार्च में ही एंड हो रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर, सो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है फाइनेंशियल मैटर्स में. नेक्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. ये बहुत सिंपल है, आपको पता है, हमने अमेंडमेंट की बात करी है. सो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ ऐड करके, कुछ वेरी करके, या कुछ रिपील करके. ठीक है, कोई भी प्रोविज़न है उसको उसमें ऐड करके, वेरी करके या रिपील करके. मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कैसे अमेंड होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से. सम पार्ट्स आर ऑल्सो अमेंडेड बाय दी सिंपल मेजॉरिटी. कुछ प्रोविज़न में ये भी हमने पढ़ा हुआ है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट से, एंड स्टेट लेजिस्लेचर से हाफ ऑफ द स्टेट्स के रैटिफिकेशन चाहिए, और स्टेट्स जो देंगे वो सिंपल मेजॉरिटी. ये सब हमने पढ़ा हुआ है. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको अगर लग रहा है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यू विल हैव टू चेक, बिकॉज सी what is this lecture number? This is 135th. So we have moved through 134 lectures to reach to this point कि ये आपके सारे प्रीवियस नॉलेज का कल्मिनेशन है जो यहाँ पर आ रहा है. बहुत सारा तो हमने इसी टॉपिक ऑफ लेजिस्लेचर में करा है, कुछ ये सब हमने पहले करा हुआ है. सो इन केस आई हैव नॉट डन through me or through any other source, you would definitely find a problem here, because it is just about the summing up of things together at one place. So please do the previous lectures. However, power to initiate the process of constitutional amendment lies only with Parliament and not state legislature. Even if in some matters the ratification of state is required, especially there are those matters जहाँ पे federal provision effect हो रहा होता है. लेकिन इनिशिएट अगर करना है अमेंड करने के लिए तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में पावर है, वो स्टेट्स के पास नहीं है. हाउएवर देयर इज़ वन एक्सेप्शन टू दिस. सो अगेन प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज़ दैट एक्सेप्शन? स्टेट लेजिस्लेशन कैन पास अ रेजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू क्रिएट और अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल. ये हमने करा हुआ है. वी हैव सीन दैट आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट क्रिएशन और अबॉलिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, उस केस में स्टेट लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन फॉर द अमेंडमेंट पास करवा सकती है. ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमें पता है, केशवानंद भारती केस 1973, और फिर इसी चीज़ को रीअफर्म किया गया मिनर्वा मिल केस में भी. और ये चीज़ साफ से बोल दी गई कि आप अगर अमेंड करते भी हो कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी वायलेटेड. अब ये सब क्या है, हमने करा हुआ है. ठीक है, मूविंग ऑन, जुडिशियल पावर्स मतलब जुडिशरी रिलेटेड. सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो यहाँ के थ्रू होना है. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फॉर द ऑफिस, recommend the removal of judges including the chief justice of supreme court and high court, also removal about chief election commissioner, CNAG, comptroller and auditor general to the president. तो अगर recommend करना है वो भी काम यहीं से होना है. Punishment also can be given to the members or even outsiders for breach of the privilege or the contempt. So we have a topic of privileges which we'll do in the subsequent videos. So ये सब जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस है जहाँ एक जजमेंट का रोल आता है. ठीक है, इन सब में क्योंकि रिमूवल है तो आप यूं ही तो नहीं कर सकते. यू विल हैव टू चेक इफ ऑल द क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड और नॉट. देन यू हैव द इलेक्टोरल पावर्स, इलेक्शन से रिलेटेड. सो पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमें पता है. स्टेट असेंबलीज में भी होता है. ठीक है, इनके साथ में मिलके. इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में भी रोल है. अब ये सब कैसे होता है ये हमने करा हुआ है. हाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस, व्हाट इज़ द इलेक्टोरल कॉलेज, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, व्हाट इज़ द सिस्टम बीइंग यूज्ड, सब हमने करा हुआ है. वाइस प्रेसिडेंट में यूज़ होता है लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग मेंबर्स हैं. ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं अलॉन्ग विद द मेंबर्स. तो मतलब उनके मेंबर्स से ही चुने जाते हैं ना ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लाइक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन. चेयरमैन तो खैर आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बट अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम are chosen from amongst the members. Parliament authority है to make the laws to regulate the elections to offices of president, vice president, both the houses of parliament and both the houses of state legislature. Therefore, parliament enacted certain acts ताकि ये चीज़ें smoothly हो सके, like presidential and vice presidential election act of 1952, then Representation of People Act of 1950 and 51, etc. These are some of the major ones to take care of the election or the electoral process. And then we have some miscellaneous other powers and functions. For example,
पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी इन द कंट्री. व्हाट इज़ डेलिबरेटिव? जहाँ पे डेलिबरेशंस होते हैं एंड डिस्कशंस होते हैं, है ना, बात करते हैं. तो ये एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ सब अपनी बातें रखते हैं. इट डिस्कसेस वेरियस इशूज़ ऑफ national and international significance. It also approves all the 3 types of emergencies proclaimed by the president. अभी हमने emergencies नहीं करे हैं, बट अब आपको जब ये टॉपिक पूरा पार्लियामेंट का समझ आ जाएगा तो emergency समझना आसान होगा. So you have the national emergency, you have the state emergency जिसको president's rule बोलते हैं, and you have the financial emergency. So ये तीनों तरह की emergency भले proclaim president करेंगे, but approval has to be done by the parliament. It also create or abolish the state legislative council. हमें पता है, on the recommendation of the particular state legislative assembly. It increases or decreases the area. ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आर्टिकल्स में करे थे जब हम यूनियन एंड टेरिटरी कर रहे थे, आर्टिकल 1 to 4, उस बीच में हमने इसकी बात करी थी. So increase decrease area, alter the boundaries and change the names of states and Indian Union. It also regulates the ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. अभी हमने जुडिशरी नहीं करा है, वो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स होगा वंस वी फिनिश दीज पेरिफेरल टॉपिक्स ऑफ लेजिस्लेचर. एंड ऑल्सो स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स. ठीक है, ये भी पावर पार्लियामेंट के पास में है. सो डू प्रिपेयर दिस, क्योंकि ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो and we'll continue the topic. Thank you so much. Bye bye. Take care.